پھر دوستی کی بزم سجاؤ کی عید ہے، پھر دوستی کی بزم سجاؤ کی عید ہے، اخلاص کے چراغ جلاؤ کی عید ہے۔ عید تو خوشیوں کے پھول کھلانے کے لیے تھی، مسرتوں کے چراغ جلانے کے لیے تھی، اخوت و بھائی چارگی کا پیغام عام کرنے کے لیے تھی، لیکن آج کی عید کچھ خال خال نظر آتی ہے، اس لیے کہ جس شان اور جس تذک و احتشام کے ساتھ عید منائی جاتی تھی، آج وہ مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میدان جہاں پر لوگوں کی بھرمار ہوتی تھی اور جمع غفیر ہوتا تھا، یہاں تک کہ سڑکیں بھی بھر جاتی تھیں اور امام صاحب اپنے پورے احتشام کے ساتھ آ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، نہ امام صاحب ہیں، نہ مصلی ہیں، نہ یہاں پر کوئی میدان میں عید پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا پوری طرح احترام کیا، عزت کی، روزے رکھے اور تلاوتیں کی، تراویح پڑھی، لیکن ان تمام یہ عبادتیں جو تھیں انفرادی، تمام پورے رمضان میں اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے ادا کی، اور جیسے عید آئی، حالانکہ عید کے موقع پر ایک پربہار منظر سڑکوں پر بھی ہوتا ہے، میدانوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ پربہار منظر نہیں ہے، لوگوں کا ازدحام نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے، وہ مناظر جو معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے، بچے آپس میں خوشیاں بانٹتے ہوئے، وہ منظر نہیں ہے۔ کووڈ-19 یعنی کہ کورونا وائرس کے چلتے یہ جو حکومت کی طرف سے اعلانات ہوئے ہیں، اس کی پابندی پوری طرح سے کی جا رہی ہے، اور تمام احباب اس کا احترام کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں، چنانچہ گھروں میں ہم نے عید منائی۔ عید کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں عیدگاہ کے میدان خالی خالی ہیں اور بعض مساجد میں بھی عید کی نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن وہاں پر بھی عید کی نماز ادا نہیں کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ پورے مقفل ہیں، لاکڈ ہیں، بند ہیں، کوئی یہاں پر نماز کے لیے اجازت نہیں دی گئی، کوئی نماز کے لیے آیا بھی نہیں۔ ہم مسجد کے ذمہ داروں سے گفتگو کریں گے، آپ کیا بتائیں؟ جو لاک ڈاؤن کے جو کنڈیشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے مسجد کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی تھیں، وہی 4-5 احباب جو نماز پڑھ رہے تھے وہی پڑھ رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، اس کی عمل پیرائی میں آپ کس حد تک پابند رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اس مسجد کو تالا 24 مارچ سے لگا دیا، قانون آیا، اکبر سے حکم آیا، گورنمنٹ سے حکم آیا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف جو مسجد کا اسٹاف ہے اتنے ہی پڑھنی، امام اور 2-3 آدمی، وہی آج تک ہم کرتے آئے ہیں۔ اذان دے رہے تھے، ہم نماز تو 2-3 آدمی ہی پڑھ رہے تھے۔ مکمل پابندی کے ساتھ ہم نے حکومت کے قانون کو نافذ کیا ہے اس محلے میں۔ ہم اس محلے کے مسلیوں سے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہیں ہماری بات پر لبیک کہا، مجلس منتظمہ نے جو کہا اس پر لبیک کہتے ہوئے انہیں کوئی ہم پر دباؤ نہیں ڈالا۔ مسجد میں جتنی اجازت تھی اتنی ہی آدمی کی ہم نے جماعت سے نماز پڑھائی گئی۔ یہ عید کی بھی نماز اسی طریقے سے ہوئی، میدان میں نہیں گئے۔ ڈیکیڈ سے ہزاروں آدمی ہے نا اس کے میدان میدان میں ہماری ہی مسجد کے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، مگر وہاں ہزاروں 30,000 40,000 کی تعداد میں جمتے تھے، مگر آج 4-5 آدمی نماز پڑھے ہیں مسجد میں۔ بہت سادگی، بہت اس سے ہم نے عید منائی ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، جو بھی ہوا حکومت کی جو یہ قوانین تھے اس کے پر ہم پابند رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے پاس سڑکیں بھی ویران ہیں، کوئی یہاں پر بھیڑ نہیں ہے، ازدحام نہیں ہے، لوگوں کا جمع غفیر نہیں ہے، اور بالکل سادگی کے ساتھ انہوں نے بھی، ذمہ داروں نے بھی اپنے اپنے گھر میں عید منائی ہے۔ صرف مسجد کے جو مؤذن تھے، عملہ خادمین، انہوں نے یہاں عید ادا کی ہے۔ کووڈ-19 کے چلتے جو مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ ہم
दूरदर्शन के तवस्सुत से आप तक उन मनाजिर को पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम शहर के कदीम तरीन और बहुत ही मशहूर कुद्दुस साहब ईदगाह के मैदान में हैं। आप देख सकते हैं कि कितना वसी व अरीज मैदान है। एक जम्मे गफीर होता था। न सिर्फ इस इलाके के लोग यहाँ ईद की नमाज पढ़ने के लिए आते थे, मस्जिद कादरिया भी ईदगाह से मुत्तसिल है। यहाँ भी रमज़ान की अजीब बहारें होती थीं। आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? जी, रमज़ान का जो पुरनूर नज़ारा होता है वो तो आपको हमेशा जो है कादरिया मस्जिद में देखने को मिलता है। यहाँ की जो तरावीह का माहौल होता है और तरावीह के बाद में जो आखिरी ताख़रातों में, आखिरी 10 दिनों के जो ताख़रातों में जो माहौल यहाँ पर बना होता है हमेशा, वो उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते हैं। तकरीबन शहर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और यहाँ पर माहौल भी बहुत पुरनूर महीनों में, तो शहर के बहुत दूर दूर इलाकों से भी जो है लोग यहाँ पर आना पसंद करते थे और तकरीबन ताख़रातों में मस्जिद पूरी भरी हुई होती थी और तकरीबन बाहर तक लोग बैठे हुए आपको मिलते थे। और वो सब अभी माहौल नहीं है। सारी दुनिया में कोरोना की मुहलिक वबा के बाइस लॉकडाउन को एहतियाती तदबीर के एतबार से अपनाया गया है और अपने वतन अजीज हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम मज़ाहिब के लोग इबादतें अपने घरों ही में कर रहे हैं और मुसलमान भी जब से लॉकडाउन का नफाज अमल में आया है तब से और माह रमज़ान अल मुबारक के महीने में भी तमाम इबादतें वो घरों ही में कर रहे हैं। उनका इस्तक़लाल लायक़ सताइश है, लायक़ तहसीन है और ईद उल फित्र भी वो अपने घरों ही में अदा कर रहे हैं। उनका ये जज्बा, उनका ये इसार और मुल्क के क़वानीन के साथ उनकी यगानत का ये जज्बा बिलाशुबा तारीफ़ के काबिल है। ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप तमाम से ये कहना चाहूँगा कि दुआ करें कि ये ईद सारी दुनिया में अमन लाए और इस बीमारी से अल्लाह ताला हमें जल्द निजात नसीब फरमाए। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, आप सब की खिदमत में ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ईद उल फित्र की नमाज ना मस्जिद में होगी ना ईदगाह में होगी। मैं आप सब से मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि ईद के दिन खुसूसी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ इकट्ठा ना करें, मजमा ना जमा करें, सब अपने अपने घरों में रुक करके नमाज अदा करके सबके लिए दुआओं का एहतमाम करें। अस्सलाम वालेकुम। ईद सईद की आप सबको मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो है इस साल 2020 में जो कोविड-19 के तहत हमें ये वबाई मर्ज फैला हुआ है, इस मामले में जो केंद्र सरकार और हुकूमत कर्नाटका का जो ऑर्डर है कि कंप्लीट लॉकडाउन का, उसको जो है मुकम्मल हिमायत करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सदका अदा करें। और इसमें गरीबों को, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे माली हालत से परेशान हैं, उनको भी अपनी खुशी में शामिल करते हुए ईद की खुशियों को दोबाला करें। तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र के उलमा कराम ने ये बात जाहिर की है कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है। सभी को एक मिसाल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मैं आप तमाम की खिदमत में ईद उल फितर की मुबारकबादी पेश करता हूं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस दिन से लॉकडाउन नाफिज हुआ है, जिस दिन से हुकूमत हिंद, हुकूमत कर्नाटक, अक़लियती महकमा और दारुल औक़ाफ़ के ज़रिए से जो हिदायत दिए गए हैं, बड़ी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सारी मिल्लत इस्लामिया के अफराद उस पर अमल पैरा रहे। इसी तरह सारे लॉकडाउन पीरियड में जो है तमाम अफराद रमज़ान के महीने में अपनी इबादतें घरों में अपने एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अदा किए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ज़िमन में हमारे उलमाए कराम, सियासी कायदीन, दानिशवरान कौम और समाजी कारकुन आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखते हुए इसको कामयाब बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हम बड़ी खुशी के साथ इसका गैर मुख्तम करते हैं और हम तमाम मिल्लत इस्लामिया मिलकर ईदैन के जो नमाज है, जो ईद की नमाज है, हम सब
एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपने घरों में अदा करेंगे। मैं बड़ी खुशी के साथ फिर एक मर्तबा मैं ईद उल फितर की मुबारकबादी पेश करता हूं। नाज़रीन, आपने देखा कि शहर के मुख्तलिफ मसाजिद और मुख्तलिफ मैदान और मुख्तलिफ ईदगाह, यहाँ कोई नमाज अदा नहीं हुई ईद की। जहाँ तक मस्जिदों का ताल्लुक़ है, सिर्फ मस्जिद के अमले के 2-4 अहबाब ने ही नमाज अदा की और पूरे गेट मुखफ़ल। और ईदगाहों में तो नमाज का इंतज़ाम व इंसराम नहीं था। ईदगाह कमेटियों की जानिब से पहले ही से ऐलान हो गए थे कि यहाँ ईद की नमाज नहीं अदा की जाएगी। और ईदगाहों से जो मुत्तसिल क़ब्रस्तान हैं या करीबी क़ब्रस्तान हैं, उन तमाम क़ब्रस्तानों पर भी ताले थे कि कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता था। ये हुकूमत की जानिब से जो क़वानीन मुरतब किए गए हैं, उसका पूरा पास व लिहाज रखा गया है। ईद पूरे अमन के साथ, शांति के साथ और सुकून के साथ अदा की गई। लेकिन अपने अपने घरों में मैं दूरदर्शन की जानिब से और अपनी जानिब से आप तमाम की खिदमत में ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं।